take your test. They take a psychometric test, or they take an objective test, or they take a detailing test for engineer. I am not an engineer, so I don't know what all test will I be going through. They check your ability. It is not through your marks. They check your clarity of thought. That can you design molds? Are you clear? What are the components into a mold design? How much is the cost? How much time does it take to design a mold? What is the value? वो mold जाता कहाँ पे है? पूरी चेन में उस mold का function क्या है? अगर mold नहीं मिलेगा तो क्या नुकसान होगा? या क्या फायदा होगा? They check the clarity of thought. Whichever interview you go, they also check your ambition. That you are coming here for the job, you are coming here for the package, or you have the ambition to grow into that domain. A lot of people don't talk about their ambition in a job interview. They end up talking about their package and job चाहिए सर. कई तो ये बोल भी देते हैं, सर जॉब ही चाहिए. तो वहाँ पे उनका choice लो हो जाता है. If they meet somebody who is passionate in that domain, वो कभी भी उसको जॉब नहीं देंगे जिसको जरूरत है. But who is ambitious to grow into that line, he or she may get that selection done. So अगर आप अपना aware होंगे कि मुझे अच्छा क्या लगता है, you can crack that interview. But जहाँ भी आप just for the package या just for the sake of getting a job जाएंगे, it's a 50-50% chance. I would say a lower chance for being selected. Because आपकी body language पर eyes में उनको नजर आ जाएगा that he or she is not interested for a job. तो सिर्फ पैसे चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए. अच्छा काम कोई भी है, हाँ ठीक है. अच्छा वर्किंग 6 days है, हाँ ठीक है. कहाँ पे प्लेसमेंट है? मैं रहता यहाँ पे हूँ, प्लेसमेंट है मेरी मुजफ्फरनगर में, हाँ ठीक है. So that is what a lot of freshers end up doing because they don't have an experience and they don't want to lose the first placement opportunity. उनको लगता है इसके बाद खत्म हो जाएगी दुनिया. अगर फर्स्ट ऑफर मैंने एक्सेप्ट नहीं करा, करियर खत्म हो गया मेरा. वो इस प्रेशर से जाते हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको प्रेशर जज कर लेते हैं थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज. Flexibility. A lot of people are not flexible when they go for interviews. They say that you will have to do internship in Bangalore. A lot of people say नहीं, पेरेंट्स से दूर तो नहीं जाता. मेरे मम्मी अलाउ नहीं करेंगे, मेरे डैडी अलाउ नहीं करेंगे. So you end up losing a good opportunity. It's an internship in a great company. Package is less, but they will teach you much more. A lot of companies will give you slightly higher package, but आप बोल रहे हो boring काम होगा. सारा दिन काम नहीं होगा actually. Package मिल जाएगा, but I'm sure after earning 3 to 4 months of your salary, you will talk to your friends. मजा नहीं आता. Money does not make us happy. It's the work which makes us happy. And you talk to anybody in your family, friends, relatives, future people. If you give equal money, but don't give them work. So जो Indian players हैं, 14 players in Indian cricket get the same salary for a match. They get the same salary. मैं brand and endorsements की बात नहीं कर रहा. Salary बराबर मिलती है. क्या 3 लोग जो bench पे बैठते हैं खुश होते हैं? पैसे तो मिल रहा है. क्या reason है? Why are they not happy? हाँ, but उनको तो पैसे चाहिए थे ना. I think 5 lakhs तो मिल रहा है सारे players को. उनको भी मिल रहा है, जो खेल रहे हैं उनको भी मिल रहा है. उनकी आराम है, काम नहीं है. So what is more important? And they end up playing in other Ranji trophies and other places because they get a chance to play. So even when they are highly paid, still they get demotivated जब work नहीं होता. And a lot of people in engineering get placed as a temporary or backup employment. So when you will be placed as a backup employee, you may be given a stipend, but will you be happy 6 महीने तक कुछ काम नहीं होगा आपके पास? There will be no project on which you are working. Money will give you happiness only for the initial 2-3 months. Then you will feel bored. So if you can go back to your mission statement and what you enjoy, you will be able to get selected for relevant for an interview who's under time pressure. The candidate or the company?
कैंडिडेट कौन बोल रहा है? सही बोल रहा है। आई वुड वांट टू हियर योर थॉट्स। कैंडिडेट किसने बोला? आपने? ऐसा क्यों लगता है आपको? सही बोल रहे हैं आप, होता है कैंडिडेट भी प्रेशर में होता है, बट ज्यादा कौन प्रेशर में होता है? Candidate, because in the particular time he has to prove himself. The company will, it will not matter to the company because there are many cities outside who can prove themselves. So the candidate will be in more pressure. Company is actually under more pressure because they have to fill the vacancy faster. It's a time investment for their HR manager. और जितना लेट एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे उतना लेट वो ट्रेन होगा, उतना लेट वो प्रोडक्टिव होगा. So company wants to close the position faster than the candidate. We are only looking at our limited perspective. And आप सही बोल रहे हो. But from the other perspective, when you start working in the next 3-4 years, you will get to know if somebody leaves your team. As a boss, you will be under pressure. I want a backfill today. My project work is suffering. कोई भी कैंडिडेट है मुझे ला के दो, मुझे आज ही चाहिए. But कैंडिडेट बोलेगा सर मुझे 30 days में ज्वाइन करूँगा, 60 days में करूँगा. So please don't show your pressure in the interview. And you need a job. Be confident. Show a confident face that I may deserve a job. But don't show through your eyes or body language or through your words that I need a job. Anything which I can make clear? हाँ आपसे पूछो. हाँ क्लियर ना नहीं, कोई ऐसा मुझे लगा कि शायद ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ. मैं सही बोला नहीं, मैं आप मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आई वाज जस्ट अग्रीइंग विद यू इन अ माइंड. ओके. सर जैसे आपने अपना कि शो नहीं करना कि दैट वी नीड अ जॉब, लेकिन जैसे हम अगर जाते हैं मतलब ये इंटरव्यू में तो हमें ज़रूरत है तभी तो हम गए हैं. आई थिंक उनको जरूरत है इसलिए वो आए हैं या उन्होंने आपको बुलाया है ऑन कैंपस से ऑफ कैंपस. नहीं सर, हमें भी तो जैसे हम शुरुआत में ऑन कैंपस प्लेसमेंट है तभी तो हम जा रहे हैं अगर ज़रूरत है. अगर नहीं जरूरत है बट दिखाइए नहीं ना उनको. You can show more confidence in the interview. You can accept the offer, but you can be more assertive in asking what questions do you want to ask. Sir, what are the learning opportunities I will get in your company? What is the growth path? What is the promotion policy of your organization? Can I talk to some existing employees of your company? ये क्वेश्चन पूछने से can you ask that can I get an opportunity to work in other different cities as well? How much is the package you are going to offer me? Rather than only saying yes to whatever they offer you. If you ask relevant questions, if you are doing research about that company, which can be any company which comes to your campus, सरप्राइज होता है या वो बता देते हैं आपको कुछ दिन पहले? बता देते हैं. तो खाली अपनी तैयारी करते हैं क्लोथिंग और रेज्यूमे की या कंपनी की रिसर्च भी करते हैं? रिसर्च में किसी एम्प्लॉय से बात करते हैं? नहीं, एरोगेंट नहीं होना है. आपको ये नहीं बोलना है आई डोंट वांट टू वर्क इन योर कंपनी, बट आप नहीं, ये मैं आपको फॉर एग्जांपल हाँ जी whatever they are giving us, they have हमारे पास तो कोई चॉइस है नहीं कि हम पूछ सकें कि हमें यहाँ पे काम कर रहा है, हमें इतनी सैलरी चाहिए. काम करने से सैलरी बढ़ जाती है क्या? हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा सैलरी चाहिए. कितनी ज़्यादा चाहिए होगी? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको 10 लाख दे रहे हैं, जैसे कि मैं कोई इंजीनियर बन जा रहा हूँ, तो सर मैं कुछ कंपनियाँ आएंगी जो मुझे 10,000 पर मंथ देंगी, कुछ कंपनियाँ आएंगी 30,000 पर मंथ देंगी. ओके. सबके लिए मैं ऐसा अब जो 10,000 दे रही है मैं आपसे बोलूँगा कि मैं तो कोई इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियर के बीटेक के लिए इतना पैसा लगा है, आप मुझे 10,000 कैसे दे सकते हैं? तो वो नीचे हमारे पास दूसरे कैंडिडेट्स हाँ है उनके पास, बट आपके पास भी और कंपनीज हैं. और ऐसा नहीं बोलना कि मैं क्यों ज्वाइन करूँ. आप जो रिसर्च करते हैं, आप रिसर्च में ये भी करते हैं कि मेरी स्किल्स में क्या सैलरी मिलती है इंडस्ट्री में. अगर आप में कुछ टैलेंट है अच्छा और आप एवरेज जैसे कि कोई भी कंपनी अगर कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आती है तो ये तो बताया कि हम सारे पूरी इंजीनियर सर. अच्छी
बट आपको क्या पता है कि आप टूल इंजीनियर हो या आप बेस्ट टूल इंजीनियर हो? आप अपने बारे में क्या चाहते हो? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कहता है? So, but everybody doesn't believe he is the best. But do you believe you are the best? Then that should be conveyed, and they will pay you more. If you can convey that, you know, I am the best tool engineer in my college, and you have some proof. आपका जो internship होता है, I'll request you to, you know, pay attention. Maybe that topic may not be relevant to you, but maybe for some others as well. But you can show your confidence through your internship जो आपने काम करा है या आपको जो recommendation है. I think उनको select किसको करना है? जो लो कॉस्ट पे आएगा या जो बेस्ट काम करेगा? उनकी तरफ से देखो, मैं इंटरव्यू लेने आया, मैं आपसे भी ले रहा हूँ, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ. मुझे चाहिए क्या? पैकेज पे एम्प्लॉई मैं खरीद रहा हूँ या जो बेस्ट काम करेगा वो खरीद? वो बेस्ट आपको कन्वे करना है. आप हो सकता है एग्री करें उस पैकेज पे, मैं ये तो मना कर रहा हूँ, बट अपना बेस्ट, अपना कॉन्फिडेंस उनको दिखाओ तो सही. उनको बताइए कि दिस इज द वर्क आई हैव डन, आई वुड वांट टू नो व्हाट मोर एडिशन कैन आई गेट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन. यू शुड ऑलवेज गिव देम अ मैसेज कि देयर वाज द चॉइस, नॉट डायरेक्टली, बट बाय नॉट एग्रीइंग टू व्हाटएवर दे से, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ. उनको जरूरत है, यू कैन शो दैट, यू नो, आई एम द बेस्ट वन. यू कैन शो योर बॉडी ऑफ वर्क. आपको कुछ इंटर्नशिप करा होगा, कोई रिकमेंडेशन होगा आपके पास. यू कैन हैव अ डायलॉग विद देम, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, एंड यू कैन वेट फॉर द अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल. प्लस आप इंडस्ट्री में जब नेटवर्किंग करनी शुरू करेंगे, यू विल गेट टू मीट पीपल बियॉन्ड दैट कंपनी एज वेल. आपको पता चलेगा आई कैन इजीली अर्न 50,000 पर मंथ. व्हाई आर यू एग्रीइंग टू 10,000? बट अगर हमें अवेयरनेस नहीं होगा दैट 50 भी मिलता है, फ्रेशर को ही मिलता है, और सेम क्वालिफिकेशन को मिलता है, सिमिलर कॉलेज से मिलता है. अवेयर नहीं होंगे तो हम 10 पे एग्री कर देंगे. बट अवेयर करने के लिए कैन आई मीट सम इंडस्ट्री प्रोफेशनल व्हाइल, यू नो, स्टडीइंग इन अ कॉलेज? कैन आई शोकेस माय वर्क टू देम? कैन आई कनेक्ट विद देम ऑन लिंक्डइन? कैन आई नो व्हाट मोर स्किल्स आर दे लुकिंग फॉर इन एन एम्प्लॉय? टूल इंजीनियर तो सारे हैं, 100 टूल इंजीनियर हैं आपके कॉलेज में, वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट आई एम द बेस्ट इन व्हाट आई डू. एंड इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, आपको वो बताना पड़ेगा उनको दैट दिस इज माय पैशन, आई हैव बीन डूइंग दिस इज द रिसर्च वर्क व्हिच आई हैव डन, दीस आर द मार्क्स व्हिच आई हैव अचीव्ड इन द प्रोजेक्ट्स, दिस इज व्हाट द प्रोफेसर्स से अबाउट माय वर्क, एंड आई एम कॉन्फिडेंट आई विल डू द डिजायर्ड जॉब, बट आई विल नॉट जॉइन एट 10,000. थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, अदरवाइज इट्स ओके, यू कैन जॉइन. बट अगर आपने ट्राई करा नेगोशिएट करने का और उनको लगा कि आप बेस्ट हो सकता है वो आपको 20 दे दें, क्योंकि उनके पास बजट होता है. बट दे ओनली ट्राई टू गिव यू प्रेशर बिकॉज आप लोग डर जाते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है और कोई ऑफर मुझे देगा नहीं. एज एन एम्प्लॉय आई एम वर्किंग, आई हैड 16 years of experience. If somebody offers me a package, I also would need that, but I will not show it to them that I need that. I will also share my terms and conditions. That is not कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, मैं घर से काम करूँगा, मुझे 3 foreign holidays चाहिए, ऐसी बात नहीं मैं कर रहा. But the basics I will negotiate. That this is the package I am looking at. These are the terms and conditions, and in a very very polite manner, not at all in an arrogant manner. So if somebody is paying you money, you have to give that respect. But give respect to the job, not to the money. 3 महीने बाद चेंज करने से अच्छा है अभी मत ज्वाइन करो. हो सकता है आपको वो अपॉर्चुनिटी कोई आ रही हो, वेट कर रहे हो उसके लिए, एंड यू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी. कितनी जगह अप्लाई करते हो ऑन एवरेज? 5+. क्या क्राइटेरिया होगा आपका कॉलेज सेलेक्ट करने? एनीवन कैन शेयर. जिसने 5 से ज़्यादा जगह अप्लाई करा था, जहाँ हो गया आपका, बट यू जॉइंड वन कॉलेज, क्राइटेरिया क्या था? प्लेसमेंट. So you prefer the course? Okay, you prefer the course and not the college. That's a right way. Anyone else? आपका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया था? फैकल्टी. ओके, ग्रेट. फैकल्टी को रिसर्च कर लिया था आपने? इससे पता करा था, बात करी थी स्टूडेंट से,
fantastic. So you did not join a brand, you joined the college which had the good faculty. You joined the college, she joined the college which had a relevant course. She could have got a higher brand but a non-relevant course. She waited to choose the course, not the college. That's the criteria. जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वो लोग भी तो ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं. आपका क्या क्राइटेरिया था? आपने कितनी जगह अप्लाई मार्क्स आए? नहीं, कितनी जगह पे सिलेक्शन हो गया था आपका इंजीनियरिंग कॉलेज? 3 जगह हो गया था. तो 3 में से एक कैसे सेलेक्ट करा? आपके पास भी तो प्रेशर था कि जहाँ पहला हुआ है वहीं कर लेता हूँ यार, अगले कॉलेज पर होता हूँ. होता है ना प्रेशर. मेरे पास भी था जब ग्रेजुएशन कर रहा. कैसे ज्वाइन करना? आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या? प्लेसमेंट किसी ने ब्रोशर में लिख दिया उससे या बात करा? किससे बात करा? उसी कॉलेज के. फैंटास्टिक. तो आपने रिसर्च करा, आप जिस कंपनी में जॉब दे रहे हैं, अगर आपको मैं बताऊं कि किस तरीके से आप उस कंपनी के एम्प्लॉय से इंटरेक्ट कर सकते हैं पहले से, ऑफर मिलने के बाद नहीं. जो कंपनीज आपके कैंपस में आती है उनके एम्प्लॉयज हैं, क्या आप ये 2 साल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं महीने में आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट टू इंटरेक्ट विद दोज एम्प्लॉयज? अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इंडस्ट्री के बारे में. फ्रेशर को पैकेज क्या होता है, जॉब में गुड पार्ट क्या है, जॉब का बैड पार्ट क्या है, ग्रोथ होता है या नहीं होता, हर साल इंक्रीमेंट होता है या नहीं होता, एंड इस कंपनी की रेटिंग क्या है अपने इंडस्ट्री में. आपकी कॉलेजेस की रेटिंग होती है, रैंकिंग होती है, कंपनीज की भी रैंकिंग होती है इंडस्ट्री में. अगर आप लो पैकेज में ज्वाइन करेंगे इन बेटर रैंक ऑर्गेनाइजेशन जो इंडस्ट्री लीडर है या चैलेंजर है, नंबर 2 पे या 3 पे, आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा. तो ये चॉइस तब आप कर सकते हैं जब आप अवेयर हो. फॉर आवर कॉलेज वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. फॉर आवर जॉब्स आई कैन अंडरस्टैंड वी डोंट डू दैट रिसर्च. ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का प्रोडक्ट क्या है आप वो पता कर लेंगे इंटरव्यू के लिए कि पता होना चाहिए कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, बट इंडस्ट्री रिसर्च नहीं करते. सरकारी कैसे करें? क्या क्वेश्चंस अगर कोई कंपनी का मतलब उससे क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए? रिसर्च कैसे करें? वन इज ऑनलाइन वेयर यू कैन अंडरस्टैंड उस इंडस्ट्री का बिजनेस क्या है. लेट्स टेक अ कंपनी. Minda Group of Corporation. So Minda is into manufacturing. They are an OEM. They manufacture parts for automobile companies. So if you go to their website, you can understand which are their customers. You can also understand which are the top manufacturing OEMs in the country. Maybe there are other organizations in Greater Noida and Gurgaon who have a higher ranking. Maybe you know somebody in your family and friends who is working in Maruti. Can you talk to them? Can you take the initiative to talk to that uncle or your brother or cousin that how is Minda? वो आपको रिव्यू कर रहे हैं, आपका रेफरेंस चेक कर रहे हैं, आप कंपनी के रेफरेंस चेक क्यों नहीं कर सकते? बात करके ऑनलाइन आप रेस्टोरेंट का तो रेफरेंस चेक करते हो, लाइक्स करते हो, या किसी भी फंक्शन का मूवी का रेफ चेक करते हो ना. It's a fantastic movie or a time waste. Please don't go. So there are various people who will tell you the truth. That how good that organization is, what are the skills they look at in their people. Once you join Minda at a low package, they develop the employee. They give you so much of training that within 2 years you are a different person altogether. अगर आपको ये होगा पता और Minda क्या वेट करोगे ना फिर कैंपस में, और आप पहली कंपनी जो है उसको ज्वाइन नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता है Minda मुझे क्या क्या कैपेबिलिटी एनहांस कर सकता है मेरा, एंड यू विल मेक अ मोर इन्फॉर्म्ड चॉइस. उसके बाद हो सकता है आप करियर एंजॉय नहीं करो, बट देन आपका क्राइटेरिया सेफ है. यू हैव डन द रिसर्च. देन थ्रू आवर प्रोग्राम्स यू कैन कनेक्ट टू पीपल हु आर इन दैट इंडस्ट्री. सपोज आई मेक यू कनेक्ट टू समबडी हु इज द CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और द IT हेड और द प्रोडक्शन हेड ऑफ Minda एट अ स्टेज व्हेन यू आर नॉट लुकिंग एट अ जॉब. उनको पता है अभी आप जॉब नहीं ढूंढ रहे, अभी आप उनसे पूछोगे वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे. They will coach and guide you, they will mentor you, they will tell you what skills are required to get a job in Minda. आपके पास 1.5-2 साल है वो skills build करने के. Apart from your education, it can be communication skills, it can be public speaking skills, it can be your social awareness,
what is the social style. It can be you have to be very good in some particular technology beyond molding. हो सकता है मिंडा में मोल्डिंग करने वाले बहुत है, बट मोल्डिंग प्लस वन मोर कोई नहीं, तो आप अपनी एक निश बना सकते हैं. और जब मिंडा आएगा इंटरव्यू के लिए या उसके जैसी और कंपनी आएगी, who will they select between you and your 4 friends? Because you have done that hard work in the last 2 years, you are preparing for an interview. So preparing for an interview doesn't happen when the campus placement starts. It happens when you make an aim, मुझे किस इंडस्ट्री में जाना है. कईयों को ये भी पता होता है कि इस कंपनी में जाना है, और कईयों को ये भी पता होता है उस कंपनी में क्या फंक्शन में जाना है. बहुत सारे इंजीनियर सेल्स भी करते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स टेक्निकल लाइन में जाते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स ऑपरेशंस में जाते हैं, और बहुत लोग प्रोग्रामिंग में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या जो कोर टेक्निकल डोमेन है उसमें जाते हैं. उन फंक्शंस की नॉलेज अगर आपको होगी, आप बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं. दैट आई नो दिस स्किल ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टूल इंजीनियर, आई नो प्रोग्रामिंग एज वेल. दिस वाज माय सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट इन कॉलेज, सो आई कैन ऐड 2 more roles to my profile. That is the reason I am asking you for a higher package. I know that your company needs tool engineers, but I know your company needs tool engineers who are also good in these 2 skills. I am good in these 2 skills. That is the reason I would want a decent package. I would request you to consider my offer. It will make you appear very, very confident in the interview, and they will be surprised. Because they are used to meeting people who are looking at sir नौकरी दे दो, हाँ सर ज्वाइन करूँगा. अगर वो बोलेंगे सैलरी, जैसे कई लोग लिखते हैं, एक जोक भी था दैट यू नो सीवी भरवाया, सैलरी उसमें लिख दिया सैलरी एक्सपेक्टेड, उसमें लिख दिया यस. सैलरी एक्सपेक्टेड में वो अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप अमाउंट लिखोगे, बट एक लड़के को इतनी जरूरत थी सैलरी एक्सपेक्टेड, उसने यस लिख दिया. सो प्लीज डोंट कन्वे दैट यस टू देम. यहाँ पे गलती क्या होती है? When you go to a company's office, a lot of people end up getting rejected because of what they do in lifts, lobbies, parking and reception. So, what is the importance of your conduct in these areas? Not on campus, off campus. Even in on campus. आप जा रहे होते हैं, आपको क्या पता वो इंटरव्यू लेने आ रहा है, आप अपनी मस्ती में जा रहे हैं, आपने जो बोल रहा है आपने बोल दिया, पता चला आपकी मीटिंग हुई है तो अच्छा वेट ही कर रहे हैं आप भी. सो बट दैट इज नॉट अ फनी वे. बट व्हेन यू गो आउटसाइड फॉर योर कंपनीज ऑफिस टू एन इंटरव्यू, पीपल आर ऑब्जर्विंग यू इन दीज एरियाज, एंड दैट पीपल मे नॉट बी द पर्सन हु इज डूइंग द इंटरव्यू. ही मे बी द फंक्शनल हेड, ही मे बी द लाइन मैनेजर, ही मे बी द CEO ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, he may be a vice president in that company. आपको तो नहीं पता होगा वो कौन है, बट उनको पता होगा आप कौन है. आपने एक टैग लगाया होगा, कॉलेज का CV होगा, आपका CV होगा, और आपके फेस पे नर्वसनेस होगी, मुझे नौकरी चाहिए. वो जज कर लेंगे आप, बट हाउ यू कंडक्ट इंटरव्यू से पहले रिजेक्ट कर लेंगे. So a lot of people talk very, very loudly in reception. They play videos, बोर हो रहे हैं, गेम खेल रहे हैं. एटलीस्ट फॉर दैट मोमेंट व्हेन यू आर इन दैट एनवायरनमेंट, थोड़ा कंट्रोल्ड बिहेवियर अगर आप दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं, इट विल इंश्योर कि कोई नेगेटिव मार्किंग ना हो. पॉजिटिव मार्किंग नहीं होता इसका, बट नेगेटिव हो जाता है. सो हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ. जैसे अगर आप किसी के ऑफिस में गए, आप अपने वहाँ आपके कज़न का फ़ोन आ गया, आप उससे पूरी डिस्कशन कर रहे हैं, यार आप इस बार दिवाली में ये करेंगे या वहाँ पे हिल स्टेशन पे जाएंगे, लाउडली बोल रहे हैं, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, शायद आपको कुछ बोलेंगे नहीं, बट दैट विल हैव एन इम्पैक्ट इन योर इम्प्रेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू. Be cautious in these places. When I was in sales, I was told that I should not discuss my quotation, my proposal, what I have to offer, what the customer understood, what the customer didn't understood after coming from the call. I don't know who is going down in the lift with me, and I would have discussed with my senior colleague or junior colleague, यार अच्छे रेट पे दे दिया, इनको पता नहीं चला, हाई मार्जिन को ऑर्डर आ रहा है. और मेरे साथ जो लिफ्ट पे जा रहा है वो उसी कंपनी का एम्प्लॉई है और उसी फंक्शन में है.
So I should know when to control my tongue, when to control my behavior in these places. There are a lot of people who are observing you in these places. जिनसे आपको थोड़ा जोर से मार्क्स कितना मैटर करता है फर्स्ट जॉब में. हाँ, ये जो हम 4 साल बीटेक में जितना भी परसेंटेज लाते हैं जैसे In my personal opinion, which is very very limited, it doesn't matter at all. But the person who is coming to interview, he is not an engineer. He can't judge you on your marks. He will judge you on parameters, everything beyond your marks. What is the criteria? आपका अगर 60 से कम आए तो इंटरव्यू के लिए बुलाते नहीं है. Is that the criteria? Yes, sir. तो if that is the criteria, then तो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा ना. वो आपके कॉलेज का और उस कंपनी का क्राइटेरिया है. बट आपको लगता है मार्क्स मैटर करता है. मार्क्स आपका टीचर या प्रोफेसर जज कर सकता है. जो इंटरव्यू लेने आया है या जो कंपनी है उनको थोड़ी वो नॉलेज है जो आपके प्रोफेसर्स को है. दे कैन जज यू ऑन योर मार्क्स. वो फॉर्मेलिटी के लिए एक बार देखेंगे. दे विल नॉट आस्क यू क्वेश्चन. Your professor can ask you a question that in this subject of B or B.Tech, why did you score less? But I am a human resource manager from a company, IT. I have not studied that subject. मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा आपसे? बट अगर आपका प्रोफेसर देखेगा, वो बहुत ग्रिल करेगा आपको. इस सब्जेक्ट में 41 क्यों है? बट उनको अवेयरनेस नहीं है. आई थिंक वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछेंगे आपने इंटर्नशिप में क्या करा? What are the skills you have? What did you learn from failure? आप कभी फेल हुए लाइफ में? तो उनको वो लोग नहीं चाहिए जो हमेशा सक्सेसफुल ही हैं. क्योंकि फेल होने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा. They will ask you questions to check your skill level, your confidence, your capability. आप कितना फ्लेक्सिबल है जॉब रोल में और आप कितना एम्बिशियस है वो काम करने के लिए. नॉलेज वो जज, अगर वो कोई ऐसे प्रोफेसर अपने साथ नहीं बिठाते नॉलेज को जज कर सकता है. कितनी देर का इंटरव्यू होता है एवरेज? 10 मिनट. मैक्सिमम 20-30 मिनट्स. 30 मिनट में आपसे वो क्या प्रैक्टिकल करवा लेंगे इंजीनियरिंग? कोई प्रोग्राम तो नहीं डिजाइन करा लेंगे कि आप डिजाइन करो प्रोग्राम. इज इट पॉसिबल? कोई कोडिंग करा सकते हैं, मोल्डिंग करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं आपसे? Primarily 60-70% they will judge your confidence and how you communicate your skills, your strength. आप बहुत चुप तो नहीं रहते इंटरव्यू में. आपको जो आता है आपको बोलते हैं. आई थिंक उसकी जजमेंट होती है सब. और उनके पास टाइम प्रेशर होता है कि हमें कितने लोग इंटरव्यू करते हैं नॉर्मली 50. अगर एक कंपनी आती है हाउ मेनी पीपल टू द इंटरव्यू. उनका टाइम प्रेशर पे थोड़ा सा यार उनके लिए भी ध्यान रखो. उनके पास प्रेशर है 150 स्टूडेंट्स या 50 या 100 से मिलने का. बस टाइम का जज करने का. I'll share it. Non-verbal communication is what your body, your gestures, your eyes communicate to the person. आपको कई बार लोगों से बात करके लग जाता है ये झूठ बोल रहा है. लगता है वो बोलता तो नहीं है कि आई एम टेलिंग अ लाई. बट कहीं ना कहीं आपको उनकी आईज से, बॉडी लैंग्वेज से या जेस्चर से लग जाता है कि डाउट हो रहा है. मैं चेक कर लेता हूँ. ऐसे ही जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, आवर ऑल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट वी डोंट स्पीक कन्वेज अ लॉट. So if you are sitting like this, that's a posture like reserved, not open to ideas. Rigid, that's a stance. हो सकता है आपको ठंड लग रही हो, but that's the message of that pose. If you are leaning forward in an interview, मतलब आप टेबल पे आगे हाथ रख के बैठे हैं, उसको लगेगा आपको इंटरेस्ट है. आप पीछे के ऐसे बैठे ऐसे करते हैं, लीन बैक करके एक टांग को दूसरी टांग करके ऐसे बैठे हैं. उनको लगेगा ये मेरे इंटरव्यू ले रहा है, इसने काम तो करना नहीं. आप इंटरव्यू के बीच में अपना 15 बार व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं. और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, मूवी देखने जाना है उसके बाद कौन सी मूवी है, टिकट के पैसे कौन दे रहे हैं, बहुत जरूरी है चेक करना. बट उसको मैसेज मिल जाएगा ही इज नॉट सीरियस, शी इज नॉट सीरियस. मे बी आपका मैसेज का देने का इंटेंशन नहीं है,
बट आपकी बॉडी लैंग्वेज से सिग्नल चला गया। और अगर आपने इंटरव्यू पे फोन साइलेंट नहीं करा, बेसिक कर्टसी जो होता है कि फोन साइलेंट होना चाहिए, आपको वॉकअप वॉक आउट वॉक इन नहीं करना है, और आपको एक बेसिक ड्रेस कोड मेंटेन करना है। बहुत लोग को टफ लुक अच्छा लगता है, अजय देवगन लुक, so they don't shave when they go for an interview because that is the look my friends prefer and they say you are very handsome, but for an interview maybe आपको हेयर स्टाइल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ेगा for those 15-20 minutes so that they get that message and these are the signals जो आपको कोई बताएगा नहीं but उनको इंप्रेशन मिल जाएगा। आप भी कई टीचर्स आते हैं आपसे मिलने, प्रोफेसर आते हैं, आप उनके बारे में कैसे जज कर लेते हो? विद इन दी फर्स्ट 10 सेकंड्स हम लोग जज करना शुरू कर देते हैं किसी करते हैं। आप लोगों ने मुझे भी जज करा होगा, बताएंगे या नहीं बताएंगे मुझे पता नहीं, बट विद इन दी फर्स्ट 8 to 10 सेकंड्स यू मीट अ स्ट्रेंजर, आपके माइंड में एक इंप्रेशन फॉर्म होना शुरू हो जाता है। फिर वो सही हो या गलत हो पता नहीं, बट हमारा माइंड रोक नहीं पाता उस इंप्रेशन को। सिमिलरली आपके साथ भी तो होगा। If you are neatly dressed, if you have a positive body language, अगर आप नॉट कर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हैं, if you are listening to what the interviewer is asking you, वो आपसे पूछ रहा है, आप बोल रहे हैं सर आई गॉट 81%, वो पूछ रहा है फिर कुछ आपसे बोल रहे हैं सर आई गॉट 83% in this subject. So please listen, the question is about marks or is it about application of that subject? That okay, you got good marks in molding. What molds have you made in your college life? You know, tell us 3 molds. Sir, I was the best student. I got 83%. So which means आप अपना बोलने में interested है, listening में attention नहीं दे रहे. These are the softer aspects जो लोग judge करते हैं आपके बारे में. इन्हें implement कर देगा. What's your name, ma'am? Disha. So Disha, आप बैठ जाओ. But can I get 2 recommendation references from Disha? This is not family. तो वो आपके बारे में अच्छा क्यों बोलेंगे? आपको रिलेशनशिप मेंटेन करोगे ना, सो यू नो डोंट आस्क फॉर रेफरेंसेस फ्रॉम योर सीनियर्स इन द फाइनल ईयर. डू समथिंग गुड फॉर देम एज वेल सो दैट दे गिव अ जेन्युइन रिकमेंडेशन. दे विल राइट, पीपल विल राइट टू देम वन टू वन ईमेल. आपको पता भी नहीं चलेगा ईमेल गई उनके पास, और दे विल गिव देम अ फोन कॉल. दे विल से मैंने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया आपके बारे में, तो मैंने बोला होगा सर देख लो. That's a negative reference. They may say हाँ यार चिंता ना कर, मैंने बहुत अच्छे रेफरेंस दिया तेरे बारे में, और आपको कभी कॉल दोबारा आएगी नहीं. उन्होंने बोला हाँ सर ठीक है देख लो. So develop those relationships and identify your seniors who will be relevant. कौन influencers हैं, कौन अच्छी कंपनी में काम करता है. Do you maintain touch with people who pass and get jobs, या आप जो कॉलेज में होता है वही आपका रिलेशनशिप ब्रैकेट है? आपकी कॉलेज में आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड में, फोर्थ में, देयर आर पीपल हु गेट जॉब्स, हर साल मिलता है उनको. डू यू गेट इन टच विद देम? Now we have to one level of senior, not 2 or 3 level of seniors. कौन रोकता है? We don't recognize them. आप उनको फोन या ईमेल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो. दे विल रिकॉग्नाइज यू फ्रॉम द सेम कॉलेज. आई थिंक एलुमनाई एसोसिएशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है हर कॉलेज में. व्हेन द एलुमनाई कम बैक, इस साल भी होगा, तो आप उन लोगों के साथ इंटरेक्ट अगर नहीं करोगे उस इवेंट में 2-3 घंटे में, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. They may be working in the industry, or they may be very very talented for a particular skill, or they may have observed you in a session and they may have a good impression about you. But अगर आप उनसे पूछोगे नहीं सर प्लीज मेरा रेफरेंस दे देना मेरा जॉब इंटरव्यू में, कैन आई गिव योर नेम एंड नंबर, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस दे विल से यस, हाँ यार मेरा नेम नंबर दे दो, ईमेल आएगा मैं रिकमेंडेशन दे दूँगा. बट यूज दोज रिलेशनशिप्स नाउ. Once you will be in 4th year, 15 days to go for campus placement or interview, there are strong chances they may not add that value. वो बोलेंगे formality के लिए बोल रहा है, 4 दिन उठाएंगे शायद. But this is the time you have. You are in which year? 3rd year. So you should have some good relationship with the 4th year class because they will get a placement earlier than you. So they can be a very strong recommendation source for you.
और अगर आप किसी को जानते हो जिसको इस साल प्लेसमेंट मिला है, प्लीज स्पीक टू दैम कि आपको कहाँ प्लेसमेंट मिला, क्या पैकेज मिला, जो आप काम कर रहे हैं वो काम क्या है, ताकि आपको इनका वाला प्रॉब्लम ना हो। जब आपको 10,000 का ऑफर मिले आप मना कर सको, क्योंकि आपको पता है वो इंडस्ट्री में तो 30 का पैकेज मिलता है, 30,000 पर। बट अगर पता नहीं होगा कि मिनिमम है तो वो आपको कम कॉस्ट पे आपकी सर्विसेज बाय कर लेंगे। सो इट्स अ बेनिफिट टू दैट कंपनी, आपको नुकसान हो जाएगा। सो प्लीज यूज दिस टाइम। आप किसी सीनियर को जानते हैं, आप फोर्थ में हो, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में कितने लड़कों को या गर्ल्स को जानते हो जो आपको रेफरेंस दे सकते हैं आपके बारे में, आपके काम के बारे में? तो उनके साथ रेगुलर इंटरेक्ट करो और उनको बताओ कि यू नो कैन आई हेल्प यू इन समथिंग। हो सकता है उनको कोई हेल्प की जरूरत हो किसी प्रोजेक्ट में, हेल्प देम इन द प्रोजेक्ट राइट नाउ, ताकि ट्रस्ट डेवलप हो। रेफरेंस क्लास से मिलता है। अगर वो कोई ग्रुप असाइनमेंट कर रहे हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं, उनको हेल्प चाहिए, प्लीज टेल देम सर कह रहे हैं हेल्प डेवलप दैट नेटवर्क। फायदा अभी नहीं होगा बट 2 साल बाद बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। हो सकता है उन्हीं की कंपनी में इंटर्न की जरूरत हो, फ्रेशर की, तो वो किसको बुलाएगा जो टच में रहता है? आपका नाम ओम। सो दे विल हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस कि मैं ओम से बात कर लेता हूँ, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, उसका अभी कंप्लीट हो रहा 4th ईयर एंड वी नीड फ्रेश इंजीनियर्स। ऑफ कैंपस ज़्यादा अच्छा पैकेज मिल सकता है, हो सकता है दे आर वर्किंग इन अ बेटर कंपनी देन व्हाट कम्स टू योर कैंपस, या उन्होंने 2 स्विच कर लिए हो 2 साल में। हैव दैट इज द पावर ऑफ योर नेटवर्क। One is the power of your existing network, which is your classmates. They will all grow together, and that's a very strong association you have. आप इन तीनों को चारों को भूलोगे नहीं, but there